once again, students. So, welcome back once again. I hope you all are safe and fine and doing amazing. So, today I'm going to teach you general awareness from your Oxford Advantage book, and the name of this book is All About Me. So, come without delaying, let's move on it and let's see what we are going to study today. Okay, so this is your today's topic, that is keeping clean. So as we all know that it's corona time and we all have to keep ourselves clean and protected to get rid of this virus forever. So in this topic you are going to learn some of the methods and some of the ways you can keep yourself, your surrounding and advise other people to stay clean. So come, let's read this and get to know the different ways to keep ourselves and our surrounding and the peoples around us clean. Rub a dub and scrub a dub. Join the clean and happy club. Washing yourself will make you clean. Keeping clean will make you beam. Rub a dub and scrub a dub. Join the clean and happy club. Rub a dub and scrub a dub. So students, this is a simple rhyming words which are taken here to rhyme the poem. इनका कुछ ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है. इट इज जस्ट दैट कि हम लोगों को अपने हाथ को रब करना चाहिए एंड स्क्रब करना चाहिए, जॉइन करना चाहिए ताकि वो क्लीन रह सके और हैप्पी. और हम लोगों को ऐसे ही हैप्पी क्लब ज्वाइन करना चाहिए. वॉशिंग योरसेल्फ विल मेक यू क्लीन. अपने आप को साफ करना, अपने आप को वॉश करना आप लोगों को क्लीन रखेगा. कीपिंग क्लीन विल मेक यू बीम. अगर आप लोग अपने आप को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे तो यू विल बिकम बीम. सम पॉजिटिव वाइब, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लीनिंग वाइब विल come from you and catch you and you will get a positive vibe around you, a positive surrounding. So अगर आप लोग खुद को clean रखेंगे then that will make you beam. And again that line, rub a dub and scrub a dub. Rub करिए अपने hands, dub करिए, join the clean, cleanliness को join करिए, cleanliness जैसे happy clubs को join करिए. So this is the poem, and in this poem the poet is describing that how we can keep ourselves clean, and he described it in very funny way and in a very happy way. So here are some ways given down there that how can we keep ourselves clean. So as you can see, here is a boy bathing in the bathtub. So students, through bathing, let me write it. Through bathing we can keep ourselves clean. अगर हम लोग नहाएंगे, साफ रहेंगे, नहाने से हम लोग साफ सुथरे रह सकते हैं. नहाने से हमारी पूरी बॉडी वॉश होगी, जिसकी वजह से जितने भी जर्म्स हैं या जितनी भी बैड बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे. सो द फर्स्ट वे इज बाथिंग. सेकेंड, ब्रशिंग. So as we have told from our childhood that we should bath daily, we should brush our teeth daily. The first thing which we get up from the bed and do is to brush our teeth. It keeps our teeth clean, white, shiny, and we also get rid of bacteria and the foul smell. जो कि हमारे मुंह से फाउल स्मेल्स आने लगती हैं और हमारे टीथ कभी कभी अगर हम लोग वॉश नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते हैं तो वो येलो हो जाते हैं और जर्म्स उसमें आ जाते हैं. तो ब्रशिंग की हेल्प से हम लोग उन सारे जर्म्स को, उन येलोनेस को और वो जो फाउल स्मेल होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं. सो द नंबर थर्ड इज टू फ्लश.
So students, the number third is to flush. Whenever you go to the washrooms or wash your hand or do whatever in the washroom, you have to put water over there or flush it off. That keep this your bathroom and the environment clean. Fourth is washing hands. So students, वॉशिंग हैंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एज अभी कोरोना चल रहा है तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को बार बार कहा जाता है वेन एवर यू कम टू होम फ्रॉम आउटसाइड, फर्स्ट थिंग विच यू डू इज टू वॉश योर हैंड्स, सो दैट इफ एनी काइंड ऑफ जर्म्स और एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया अगर आपके हाथ में आ जाएंगे तो अगर आप सबसे पहले उसको वॉश कर लेंगे तो वो स्प्रेड नहीं हो पाएंगे. इसीलिए हम लोगों को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद, बाहर से आने के बाद हमेशा हैंड को वॉश अच्छी तरीके से सोप यूज़ करके वॉश करना चाहिए, जिससे हमारे हाथ के जो बैक्टीरियाज हैं, जो भी जर्म्स हैं, वो उसके साथ धुल सकें. द नंबर फिफ्थ इज बाथिंग. So students, I have told you about bathing on number 1. So this will remain the same point, as bathing is very important that it keeps our whole body clean. It removes the bacteria or germs from our whole body. Hands wash करने से हमारे hands clean होते हैं. Teeth को wash करने से हमारे teeth clean होते हैं. फ्लश यूज़ करने से एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमको पूरी तरीके से फ्रॉम आवर हेड, फ्रॉम आवर टॉप ऑफ हेड टू आवर टोज, इट विल कीप आवर होल बॉडी वेरी क्लीन. सो द फिफ्थ इज combing hairs. सो स्टूडेंट्स, कोम्बिंग हेयर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम लोग अपने बालों को, अपने हेयर्स को कोम्ब नहीं करेंगे तो वो बहुत डर्टी होते जाएंगे एंड आपस में, जैसे कि कोई थ्रेड आपस में उलझ जाता है, उसी की तरीके से हमारे बाल भी आपस में उलझते जाएंगे एंड इट विल बिकम अनप्लीजेंट फॉर अस. इट विल नॉट लुक नाइस एंड इट विल इरिटेट अस ऑल्सो. हम लोगों के लिए भी वो इरिटेटिंग हो जाएगा. इसीलिए हमारे हेयर्स को कोम्ब करना, उनको सिल्की सॉफ्ट रखना एंड ईजिली ऐसे रखना कि हम लोग ईजिली अपने हैंड्स को हमारे हेयर से पास करा सकें. दैट विल गिव अ प्लीजेंट लुक टू आवर हेयर्स एंड ऑल्सो कीप आवरसेल्व्स क्लीन. इट विल गिव अ गुड लुक दैट यू आर क्लीन. देखने में ही लगेगा कि येस, शी इज नाइस और ही इज नाइस, ही इज लुकिंग क्लीन. सो आफ्टर दिस, here is a question given. Is there any activity that you can do on your own? Talk about in class. So students, as your classes are not going, so I am discussing it here. And this question ये पूछा जा रहा है कि क्या इनमें से कोई भी एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल बाथिंग, ब्रशिंग, टू फ्लश, वॉश हैंड्स, कोम्बिंग हेयर्स, क्या इनमें से कोई भी एक्टिविटी है जो आप अपने ऊपर खुद पर ट्राई करते हैं या खुद करते हैं वो एक्टिविटी? सो येस, नॉर्मली हम लोग बाथ भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं, वी गो टू द वॉशरूम हम लोग फ्लश भी करते हैं, कभी भी बाहर से आते हैं तो हम लोग हैंड्स भी वॉश करते हैं, हम लोग अपने हेयर्स को कोम भी करते हैं. और अगर इनमें से कोई भी ऐसी हैबिट है जो आप लोग नहीं करते हैं, देन मेक श्योर यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट राइट फ्रॉम टुडे, एज दीज ऑल आर गुड हैबिट्स. सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा. नाउ विदाउट डिलेइंग वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. So students, this is your next page and the topic is good habits. See, there are many good habits, as I have told you in the previous page, that bathing is a good habit, washing hand is a good habit, to flush is a good habit, brushing your teeth, combing your hairs, all these are good habits.
इनफैक्ट अपने आप को साफ रखना, अपने आप को क्लीन रखना इज़ अ गुड हैबिट। अगर हम लोग अपने आप को साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो जो सामने वाला इंसान है दैट विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, वो हम लोगों को देख के इंस्पायर होगा। सो हियर आर सम मोर गुड हैबिट्स जो कि आप लोग भी जानते हो कि वो हमारी डेली लाइफ में गुड हैबिट है और हम लोगों को ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हियर आर एक्सरसाइजेस गिवन, पुट अ टिक नेक्स्ट टू द पिक्चर दैट शो गुड हैबिट। आप लोगों को एक छोटा सा टिक लगाना है, जो कि बॉक्सेस दिए हैं उनको देखिए, इमेजेस बनी है उनको देखिए, रिकॉग्नाइज करिए कि ये गुड हैबिट है, ये बैड हैबिट है। उसके बाद आपको उसमें टिक लगाना है जो कि गुड हैबिट है, और जो नहीं गुड हैबिट है उनमें क्रॉस लगाना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं शी इज थ्रोइंग द पील ऑफ बनाना इनटू द डस्टबिन। So that we have to, it is normal that we have to throw all the garbage, जो भी कूड़ा होता है we should throw it in the dustbin. So she is doing that. So it is a good habit and we should also follow this. If you are not following this, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप इधर उधर कूड़ा डालते हैं, then you should also follow this. हम लोगों को हमेशा जो भी गार्बेज होता है हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। And see, she is doing the same. So we will put a tick over here. The next one, look, he is washing hands. So washing hands is a good habit. अभी मैंने बताया कि आपके जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं आपके हैंड में, हैंड वॉश करने से वो सारे रिमूव हो जाते हैं, वो भी यही कर रहा है। So we will put a tick as it is a good habit. The third picture, see, she is plucking a flower. वो फ्लावर को पेड़ से तोड़ रही है, तो is it a good habit? No, na, it is not a good habit. As plants are also living things, उनको भी पेन होता है, तो हम लोगों को कभी भी ऐसे फ्लावर को किसी भी तरीके से प्लांट से पिक नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। So this is a bad habit. You also don't do this ever in your life. So we will put a small cross over here. The next one. See, they both are eating the food. Simply they are eating the food, they are also sharing their meals. So this is a very good habit. We always have to share our meals with our friends. हम लोगों को हमेशा शेयर करके चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। ये लोग वही कर रहे हैं, तो हम लोग दिस इज़ अ गुड हैबिट, हम लोग यहाँ पे एक टिक लगा देंगे। एंड आप लोगों को भी हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा अपने मील्स को एंड एवरीथिंग को शेयर करके खाना चाहिए। So in this video students, I have told you about different good habits and I hope कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में उन गुड हैबिट को फॉलो करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करिएगा। So I will keep this video short till here only and do the work which I am sending you below. Till that, bye bye, stay home and stay safe.